वारे जाइए, ओ वारे वारे जाइए, तेरी शान तो है मरियम, लगनी है प्यारी सन जान तो है मरियम। वारे वारे जाइए, ओ वारे वारे जाइए, तेरी शान तो है मरियम, लगनी है प्यारी सन जान तो है मरियम। वारे वारे जाइए, ओ वारे वारे जाइए। ਦਿੱਤੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਸਭ ਔਰਤਾਂ ਚੋਂ ਰੱਬ ਨੇ, ਦਿੱਤੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਸਭ ਔਰਤਾਂ ਚ ਰੱਬ ਨੇ, ਦਿੱਤੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਸਭ ਔਰਤਾਂ ਚ ਰੱਬ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਮਾਂ ਸਭ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਮਾਂ ਸਭ ਨੇ। ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਹੈ ਮਰੀਮ, लगनी है प्यारी सानू जान तो है मरियम। ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ, ਓ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ। बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम में आमीन। जलाल के 5 भेद। जलाल का पहला भेद खुदावन यस्सु मसीह का जी उठना। तलावत कलाम मुक़द्दस यूहन्ना उसका 20वां बाब 11वीं से 17वीं आयात मुक़द्दसा। लेकिन मरियम बाहर कब्र पर खड़ी रोती रही। वो मुड़ी और यस्सु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यस्सु है। यस्सु ने उससे कहा, बीबी तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है, ताकि मैं उसे ले जाऊँ। यस्सु ने उससे कहा, मरियम। उसने उसकी तरफ फिरकर इब्रानी ज़ुबान में कहा, रबूनी, यानी आए उस्ताद। यस्सु ने उससे कहा, मेरे भाइयों के पास जा और उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप के पास, यानी अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। आमीन। गौर व खौस। मौत हरफ आखिर नहीं है। रात के वक्त रूह कुदस ने मसीह को बेदार किया। ये फ़तह का इतवार है। अपने गम में डूबी मरियम मजदली यस्सु को नहीं पहचानती, लेकिन जब वो अपने खुदावंद के होठों से अपना नाम सुनती है तब हर चीज़ उसमें नए सिरे से ज़िंदा हो जाती है। माफ़ी की घड़ी, जुम्मा के रोज़ मौत, अंजील के मुसन्नफ़ीन हमें बयान करते हैं कि सबसे पहले उसने जी उठे खुदावंद को देखा था। खुदावंद उसे रसूलों के पास भेजता है ताकि वो उनके सामने मोहब्बत की फ़तह का ऐलान कर सके। यस्सु का बाप अब हमारा बाप है और मसीह अपने शागिर्दों को मेरे भाई कहकर पुकारता है। दुआ। आए मुक़द्दसा मरियम मजदली हमारे लिए खुदावंद से दुआ कर ताकि वो हमें मोहब्बत और ख़ुशी से भर दे। खुदा की माँ के साथ
اس سے التجا کر کہ وہ ہر عورت کو جی اٹھے خداوند کی نقیب بننے کا فضل عطا کرے، تاکہ وہ خاندان اور معاشرے میں، کلیسیا اور قوموں کی زندگی میں زندگی بردار بن جائے۔ آمین۔ جلال کا دوسرا بھید، خداوند یسوع مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا۔ تلاوت کلام مقدس۔ اعمال اس کا پہلا باب 3 سے 11 آیات مقدسہ۔ اس نے بہت سی دلیلوں سے ان کو ثبوت دیا کہ دکھ سہنے کے بعد بھی وہ زندہ تھا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں دکھائی دیتا اور ان سے خدا کی بادشاہی کی باتیں کرتا رہا۔ جب وہ اکٹھے تھے تو اس نے ان سے کہا، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور سارے یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ اور وہ یہ کہہ کر ان کے دیکھتے ہوئے اوپر اٹھایا گیا، اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ وہ 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور بولے، یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے، اسی طرح پھر آئے گا۔ آمین۔ غور و خوض۔ انسان کی ابتدا پاک تثلیث کی محبت میں پائی جاتی ہے۔ ہماری زندگی باپ کے گھر کی جانب ہماری واپسی کی داستان ہے۔ یسوع نئی تخلیق کا سر پہلے ہی باپ میں رہتا ہے۔ وہ مردوں میں سے پہلوٹا ہے۔ وہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے پہلے سے جگہ تیار کرنے گیا۔ جب کہ ہم سفر میں ہیں، وہ ہمیں چھوڑ نہیں دیتا۔ وہ اچھا چرواہا اور بڑا بھائی ہونے کے ناطے وہ ہم سب مخلصی یافتوں کے لیے شفاعت کرتا ہے۔ آسمان میں ابھی تک اس کے 5 زخم قائم ہیں۔ یہ اس بات کا نشان ہے کہ وہ ہماری آزمائشوں میں ہمارے قریب ہے۔ ہمارا مشن جلال کے ساتھ اس کی واپسی کے لیے زمین کو تیار کرنا ہے۔ دعا۔ آئے ازلی باپ، تیرا الہی بیٹا کنواری مریم سے پیدا ہوا۔ اس نے ہمارے جسم سے جسم لیا۔ وہ اپنے جلالی زخموں سے ہمارے زخموں کو ڈھانپتا ہے۔ اس کی خوبیوں پر غور کر اور طہارت کے وقت کے دوران تمام مرحومین پر رحم کر۔ قریب المرگ لوگوں کو حوصلہ بخش، اور ہماری موت کے وقت ہم پر اپنی نظر کرم کر۔ ہمیں اپنی ماں مریم کے دوپٹے کے سائے تلے پناہ دے۔ آمین۔ جلال کا تیسرا بھید، روح القدس کا نازل ہونا۔ تلاوت کلام مقدس۔ اعمال پہلے باب کی 14 اور دوسرے باب کی 1 سے 4 آیات مقدسہ۔ یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے۔ جب عید خمسین کا دن آیا تو سب مل کر ایک ہی جگہ میں جمع تھے، اور یکبارگی آسمان سے ایسی آواز آئی
जैसे तुंद हवा का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज उठा, और आग के शोले की सी जुबानें उन्हें दिखाई दीं और जुदा जुदा होकर हर एक पर ठहरीं, और वो सब रूह कुदस से भर गए और दूसरी ज़ुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलना अता किया। आमीन। गौर व खौस, उमंगों और शदीद घबराहट ने उनके दिलों को मामूर कर दिया, और फिर भी वो अपने उस्ताद की तालीम ना समझ सके। सिर्फ मुकद्दसा मरियम की मदद का उन्हें यकीन है। उसकी लगातार दुआ की बदौलत तसल्ली दहिंदा नाजिल होता है। जिस तरह रूह ने पहले यस्सु को बेदार किया था, इसी तरह वो कलीसिया पर नाजिल होता है। अब वो यतीम नहीं रहे, क्योंकि रूह कुदस उनके अंदर अब्बा, प्यारा बाप आहें भरता है। अब ज़ुबानों में इख्तलाफ नहीं रहा, जैसे कि एक दफ़ा बाबल में हुआ था, इसलिए कि रूह कुदस ख़ानदान की जान है जो कलीसिया है। अब रूह कुदस उन्हें ज़मीन की इंतहा तक खुदा की बादशाही की मनादी करने के लिए भेजता है। अब उन्हें कोई डर नहीं और ना ही उनमें कोई इख्तलाफ है। दुआ। आए रूह कुदस, ज़िंदगी देने वाले, हमारे बिशप बराह रास्त 12 रसूलों के जानशीन हैं। वो अपने हाथों के रखने से हमारे काहिनों और शमासों को तेरी कुदरत से मखसूस करते हैं। हमें रसूलों की मलका की सिफारिश और कलाम के बेशुमार मुकद्दसीन और कलाम के खादिमों और साक्रमेंटों के वसीले से फ़ज़ल अता कर हमें उन तमाम फ़ज़ाइल से नवाज जो तेरी मोहब्बत की आग के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने के लिए ज़रूरी हैं। आमीन। जलाल का चौथा भेद। मुकद्दसा मरियम का आसमान पर उठाया जाना। तलावत कलाम मुक़द्दस। लुका पहला बाब 46 से 48वीं आयात मुक़द्दसा। और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है, और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नज़र की। इसलिए देख, अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। बेदाग कंवारी असल गुनाह के तमाम दब्बों से महफूज रही। जब उसकी ज़मीनी ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो वह आसमानी जलाल में बदन और रूह समेत उठा ली गई, और खुदावंद ने उसे तमाम चीज़ों पर मलका के तौर पर सरफराज किया, ताकि वो अपने बेटे खुदावंदों के खुदावंद की पूरे तौर पर हमशक्ल बनकर गुनाह और मौत को मग़लूब करे। आमीन। गौर व खौस। बाज़ बदन की परस्तिश करते हैं, कुछ इसकी हकारत करते हैं। उनकी इस बात की कतन परवाह नहीं होती कि उनके पड़ोसी के पास खाने पीने और पहनने को कुछ है या बीमारी के लिए दवा है। हमारे बदनों को रूह कुदस की हैकल होना चाहिए। मुकद्दसा मरियम हजूरी गाह है, जिसमें रूह कुदस भरपूर तौर पर बसता है। वो रूह और बदन में हमेशा अपने जी उठे बेटे की रफ़ाकत में रहती है। ये महज तशबीह नहीं है,
बल्कि एक गहरा भेद है। ये बिल्कुल जी उठने की हकीकत की तरह हकीकी है कि उसका इंसानी गोश्त और पोस्त का ममता का दिल है जो अब हमारे लिए आसमान पर धड़कता है। दुआ। आए खुदावंद यस्सु, तूने अपना जिस्म कंवारी मरियम से लिया, हमें अपने बदन की तशक्कुर और पुख्ता ज़ब्त नफ्स के साथ हुर्मत करना सिखा। हम में से हर एक को अपनी ज़िंदगी की हालत के मुताबिक मुक़द्दसा मरीम की पाकीज़गी के साथ मुनव्वर कर, ताकि हमारे बदन रूह के गैर फ़ानी वक़ार की अक्कासी कर सकें जो इसको मुनव्वर करता है। आमीन। जलाल का 5वां भेद। मुक़द्दसा मरीम की ताजपोशी और मुक़द्दसीन का जलाल। तलावत कलाम मुक़द्दस। मुकाशफा 12वां बाब 1 से 5वीं और 10वीं आयात मुक़द्दसा। फिर एक बड़ा निशान आसमान पर नज़र आया, यानी एक खातून जो सूरज को ओढ़े हुए थी और जिसके पाँव के नीचे चाँद और सर पर 12 सितारों का ताज था। वो हामला थी और तकलीफ़ में होकर दर्द ज़ह के सबब से चिल्लाती थी। फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया और देख, सुर्ख रंग का एक बड़ा अस्तहा जिसके 7 सर और 10 सींग थे और 7 ताज उसके सरों पर थे, और उसकी दुम ने आसमान के तिहाई सितारों को खींचकर ज़मीन पर गिरा दिया। फिर अस्तहा उस खातून के आगे जिसका बच्चा पैदा होने को था जा खड़ा हुआ, ताकि जब बच्चा पैदा हो तो उसे निगल जाए, और उसके यहाँ नरीना फर्जंद हुआ जो लोहे की आसा से सब कौमों पर हुकूमत करेगा। और मैंने एक बड़ी आवाज़ आसमान में ये कहते सुनी कि अब निजात और कुदरत और हमारे खुदा की बादशाही और उसका मसीह इख्तियार ज़ाहिर हुआ। आमीन। गौर व खौस। सालूस खुदा मुक़द्दसा मरियम को कायनात की मलका के तौर पर ताज पहनाता है। ये महज कोई एजाज़ी लक़ब नहीं है जो हमारी अपनी ज़िंदगियों को ना छूता हो। मुक़द्दसा मरियम दर हकीकत अपनी पुरज़ोर सिफारिश के वसीले से मसीह की कुदरत में शरीक हुई है जो तारीख़ का खुदावंद है। वो शैतान जो झूठ, नफ़रत, जुदाई, नाइंसाफ़ी और मायूसी का बानी है, उसके ख़िलाफ़ कलीसिया की जद्दोजहद में मदद देती है। वो जी उठे खुदावंद के सूरज को ओढ़े हुए हमारे ज़माने के लिए फ़तह का निशान है, बिल्कुल ऐसे जैसे वो फ़ातिमा के मुकाम पर बच्चों पर ज़ाहिर हुई थी। उसका फ़र्जंद अपने इसरारी लोहे के आसा से तमाम तारीख़ पर हुकूमत करता है। दुआ। आए मुक़द्दसा मरियम, कलाम हमें सिखाता है कि शैतान उनके ख़िलाफ़ लड़ाई जारी रखे हुए है जो कि अहकाम पर अमल करते और यस्सु की गवाही रखते हैं। आए खातून, नई हवा उन मसीहों को हौसला बख्श जो सताए जाते हैं और अपना खून बहाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जानों को अजीज़ ना जाना, यहाँ तक कि जान दे देना भी गवारा किया, बल्कि वो मसीह के लिए अपनी गवाही पर कायम रहे।
آمین۔ ਬਾਰਾਂ ਤਾਰੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ 12 ਤਾਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ 12 ਤਾਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਚੰਨ ਹੁਣੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿੱਡੇ ਪੈ ਫਬਦੇ ਚੰਨ ਹੁਣੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿੱਡੇ ਪਏ ਫਬਦੇ ਹੋਵਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੀ ਆਨ ਤੋਂ ਐ ਮਰੀਮ लगनी है प्यारी सानू जान तो है मरियम ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਈਏ ਉਹ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਈਏ ਦਮ ਦਮ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪੈ ਜਪਦੇ दम दम लेना तेरा पे जप दे दम दम लेना तेरा पे जप दे ਨੂਰੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਪੈਰੀ ਆ ਕੇ ਪੈ ਝੁਕਦੇ नूरी सब तेरे पैरिया के पे झुक दे ਕਲਣ ਸਲਾਮਾ ਉਹ ਕਲਣ ਸਲਾਮਾ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਐ ਮਰੀਮ लगनी है प्यारी सानू जान तो है मरियम ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਈਏ ਉਹ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਈਏ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਐ ਮਰੀਮ लगनी है प्यारी सानू जान तो है मरियम बारे बारे जाइए ओ बारे बारे जाइए